Hi, I'm Khala. नाज़िर, कामी सिराज, मेरा नाम फातिमा है, रशीदा, Uzaifa Awais, हिना सुहेल, मेरा नाम इकरा है. Abdurrahman Asif. And I'm here. At the Momcast studio, we are talking about how well do we know the Gen Z? और वैसे मेरे बच्चों का और मेरी अपनी खुशफहमी ये है कि मैं कूल मॉम हूँ. आज सही पता चल जाएगा. फर्स्ट वर्ड है डिलुलू. Delulu is delusion. Dilulu. You are in a delusion or something else. इसका मतलब मेरे हिसाब से ये बच्चे उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई अनरियलिस्टिक सी कोई बात इन लोगों को करनी हो, हमारी कोई बात इनको समझ ना आ रही हो और वो ऐसे कहते हैं अम्मा आप बहुत डिलुलू कर रही हैं या कुछ इस किस्म की बात, जब अनरियलिस्टिक सा हो रहे हों ये लोग जब कहते हैं. I don't know what's the meaning of Delulu. It means delusion. Slay. So, slay is the word my children use the most. It's like to show some के coolness क्या है, कुछ there is something cool या कुछ उनको दिखाना हो कि looking attractive या awesome. Even उनके Instagram accounts के सब में उनके आगे आया हुआ होता है slaying फला फला. तो slay is like something for good. Slay means styling or showing off, something like that. Slay is something very fashionable. Just as my son always say, you're slaying. Even when I was coming here, तो उसका था, oh, you're slaying mama today. You're such a slay. You're such a dumb. You are such a loser. They like to say they're slay. Slay is like amazing, cool, any adjective attached to it. If you have slay attached to it, it's like you're doing really good. स्ले आई थिंक यूज़ होता है किसी भी चीज़ की ब्यूटी को बताने के लिए या उसकी तारीफ़ वगैरह करने के लिए. बिल्कुल बेवकूफ़. मेरे हिसाब से तो ये लोग इसी वक्त इस्तेमाल करते हैं. No cap is that I'm not lying. No cap. Okay, I knew this one. I forgot. No cap. No, don't lie. No cap. I will not say anything about this. No cap. No cap. Okay, तो no cap से जब मैंने first time सुना था तो मेरे जहन में वो common term आता है ना जैसे टोपी टोपी करा रहे, तो मैंने इसको memorize किया कि cap is like no cap, कोई टोपी नहीं करा रहे, it's not a lie, it's like something truthful. When we want to say कि something is truthful तो हम बोलते हैं कि there is no cap. फिर ये है NPC. ये मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता, इस पे मैं अनकूल हो गई हूँ. ये मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता. Then NPC, I've got no idea about it. NPC, I have no idea. NPC I don't know seriously यार, मुझे NPC का मतलब नहीं पता. NPC is basically a non-playable character, and NPC in a video game is someone जिसके आप actions control नहीं कर सकते. They're like pretty non-playable character, main character नहीं है वो किसी चीज़ का. Oh, she ate and left no crumbs. I don't have a clue of that. Means she did something and she didn't even let us know, like that something. अच्छा, इसमें जो है ना थोड़ा सा इस तरह से होता है कि उसने she did amazing किसी तारीफ़ करनी हो या she just जैसे हम पहले बोलते थे she killed it, तो अब वो बोलते हैं कि she ate and left no crumbs उसके आगे ऐड करें. मैंने इसका नहीं सुना था अभी तक. She ate and left no crumb. Don't know. Then she ate and left no crumbs. So it means that she did perfectly. She nailed this thing. She ate and left no crumbs. ये मतलब इस तरह के वर्ड्स मैं यूज़ नहीं करती. She ate and left no crumbs simply means कि she did so well or like she left nothing. Like it was 100% perfect. कोई कमी नहीं थी उस चीज़ में. Left no crumbs. Low key is keeping yourself as a low profile. Then low key is used when you are not exactly sure about something, but you are partially sure about it. So you say that I'm low key feeling this. लो की आई थिंक लो की का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड हो, या मतलब उसका एक ऐसा ओपिनियन जो चीज़ ऑब्वियस है लेकिन फिर भी लोग उसको इतना ज़्यादा एक्सेप्ट ना करते हों. आई गेस दैट्स व्हाट लो की मीन्स. Low key. I'm feeling down. लो की का मतलब है कि एनर्जी बहुत कम हो रही है या डाउन जो है, इसका मतलब ऐसा है. इट्स गिविंग ये शायद इसलिए यूज़ होता है कि हम कोई भी चीज़ दे रहे होते हैं तो उसके बाद हम ये कह रहे होते हैं कि इट्स गिविंग.
It's giving, usually used for vibes, right? So It's giving. It's giving like it's giving that vibe, something like that, or it's giving. They can use them anywhere. it's giving, it's basically vibing. It's giving. Oh, you are giving a shot. Just give it. ब्रेन रॉट, ये बहुत अच्छा लफ्ज़ है। दिमाग की लस्सी बनाते रहते हैं जो, तो वो जो है ना अम्मा आप बहुत दिमाग की दही करती हैं, तो ये ब्रेन रॉट है। Brain rot. Like when I eat their brain a lot, so I'm brain rotting them. Brain rot, not understanding. ब्रेन रॉट मतलब जैसे कि जब ऐसा कंटेंट जो मीनिंगलेस है लाइक, और लेकिन फिर भी उसको लोग देख रहे हैं, उसको इंस्टाग्राम पे जो रील्स चलती हैं, लाइक आई थिंक दैट्स व्हाट ब्रेन रॉट इज। Brain rot, I don't know. Brain rot, skibbity, sigma, riz, all that counts as brain rot. ब्रेन रॉट, अच्छा ब्रेन रॉट पहले कुछ और इसका मतलब होता हुआ करता था, एंड रिसेंटली कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस हुई हैं ब्रेन रॉट की, तो अब बच्चे बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं। उस कुछ फिगर्स हैं ब्रेन रॉट फिगर्स हैं, वो डिफरेंट गेम्स में भी आने शुरू हो गए कि वो ब्रेन रॉट की फिगर्स होती हैं, तो वो लेकिन प्रीवियसली मतलब जो पहले वाले जेनजी थे वो इसको बेसिकली यूज़ करते थे कि भाई कोई चीज़ नॉन स्टॉप इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हैं, या किसी कोई बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहा है, उसकी वजह से वो ब्रेन डेड हो गया है, तो उसके लिए वो यूज़ करते थे ब्रेन रॉट। Situationship is not a casual relationship, but it's like something which can progress to a casual relationship. I think when you are stuck in some relationships type something and there is any situation, it's situationship. Situationship, so it's kind of like a weird relationship. And situationship, I think it's a gray area between romance and friendship, या आसान ज़बान में उसको बोलेंगे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। A situationship is a step before relationship. Riz is something very fashionable, I think. Charisma type something when someone is like charisma. Charisma. Don't know about this. Then Riz is, I would say, a synonym of aura, that you are really competent or you're really likable. रेड पिल का मतलब क्या होता है ऑनलाइन स्लैंग में? रेड पिल मतलब जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में रेड फ्लैग भी कहते हैं ना, बुरा होना, ख़राब होना, रेड पिल आई थिंक सो यही होता है। रेड पिल का मतलब शायद यही होता है कि आप किसी चीज़ को भी बात के लिए रखते हैं कि मैं इसको बाद में करूँगा। Red pill? I don't know. Red pill, I'm not sure. I have heard it, but I think something to do with money, probably. Red pill are basically misogynistic platforms who like present feminism in a way कि वो misandry है, इनके मर्द को अपने हुकूक तभी मिलेंगे जब औरतों के हुकूक नीचे किए जाएंगे, औरतों को अपने हुकूक नहीं मिलेंगे, and that's basically red pill. और सिग्मा मेल बनना क्यों पॉपुलर हो गया है बॉयज़ के बीच? अच्छा सिग्मा मेल, मेरा भी बेटा हालांकि वो जेन ज़ी और अल्फ़ा के बीच का है, बट मैंने उससे पूछा कि सिग्मा क्या होता है। मैंने उससे सिग्मा बॉयज़ व्हाट इज सिग्मा बॉयज़, तो यूँ कह रहे, मैंने कहा क्या व्हाट इज सिग्मा, कह रहे मैंने कहा ये मतलब ये क्या है मम्मा, मैं इसको बता नहीं सकता, बस इसका मतलब है ये। अबे मैंने कहा ये क्या बात हुई, इसका कोई मतलब मीनिंग भी नहीं पता उनका। मैंने कहा फिर थोड़ा सा और इसको इंक्वायर किया, देखा, ऑब्जर्व किया, तो समझ में आया अच्छा भाई जो उसको इस तरह यूज़ हो रहा है कि भाई सिग्मा डल बॉयज़ के लिए या कम कूल बॉयज़ के लिए बस वो यूज़ कर रहे हैं सिग्मा बॉयज़। It's like something they always say that sigma boys, पता नहीं वो क्या कहते हैं, लेकिन मैंने पूछा भी था said तो मेरे बेटे ने कहा it's like bro language something like that. Sigma इसलिए because the song Sigma Boys इसलिए बहुत famous हुआ था. Sigma, they just think that's cool, Sigma.
सिग्मा मेल बनना शायद इसीलिए पॉपुलर हो गया कि हमने उसको जोड़ दिया है कि ये पावर या इंडिपेंडेंस के साथ हमने इसको जोड़ दिया, हालांकि ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। सिग्मा, आई थिंक सिग्मा एक लैंग्वेज है, उससे रिलेट करता है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या होता है? Try to be masculine because you need to rule over females. Oh, toxic masculinity. they say that everything and उनके बारे में कुछ बोलो या उनके at the work they say that please don't talk about this. It's very toxic. टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का मतलब होता है कि लोग अपनी मैस्कुलिनिटी, जो मर्द हैं वो अपनी मैस्कुलिनिटी दिखा रहे हैं लोगों को दबा के जो औरत है वो शी इज़ इन्फीरियर एंड आई एम अ मैन, आई एम अ सुपीरियर। सो ये एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है मेरे नज़दीक। Complete the lyrics. Pretty little baby. Pretty little baby. बस pretty little baby ही मुझे आता है मुझे भी। प्रिटी हर किसी के स्टेटस में तो लगा हुआ है आजकल, लेकिन ये प्रिटी लिटिल बेबी के आगे क्या था? ब्लू बर्ड समथिंग, पता नहीं। No. I'm so in love with you. What's the green ring all this that girls are obsessed with? Oh, the macchiato? Matcha? आई थिंक माचा। No, I don't know that green ring. नहीं पता मुझे। Green ring, macho drink. I have no idea about it. Matcha. What is the most Instagrammable sport right now? पैडल। Paddle. Instagrammable sport? No, I'm not sure. Just a very famous sport in that. Maybe skating? ऑनलाइन और फिजिकल? पैडल। मैं भी खेलती हूँ एक्चुअली, इसलिए मैंने बताया। Instagram sport like go karting or some. They do the go karting mostly or scroll. Means pedal. Oh, light pedal. इंस्टाग्राम पर जो स्पोर्ट बहुत फेमस हो रहे हैं, बहुत सारे बहुत फेमस हो रहे हैं इंस्टाग्राम पर। What's the name of the luxury water bottle all the girls are carrying? Stanley? Oh, Stanley Cup. Stanley. टम्बलर, बड़ी मुश्किल से याद किया है। मेरी अभी छोटी बहन ने ली स्टैनलीज की वजह से मुझे याद है उसका नाम। ओह यस, ये तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुझे पता चला था। आजकल बड़ा वो फेमस हुआ है इंस्टाग्राम पे। इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रखी है। ये चीज़ मैंने बड़ी इनसे सीखी, मगर मुझे अभी एकदम से इसका नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी। अभी याद आ जाएगा तो शायद थोड़ी देर में मैं बता दूंगी। ये मैंने पूरी इनका देखा इसलिए कि मुझे इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पसंद आई थी बहुत। आई थिंक इसके बारे में मैंने ये देखा था कि ये चीन में किसी ने डॉल बनाई है और इस टाइप की काफ़ी सारी ऐसी डॉल्स हैं जो सेलिब्रिटीज़ से जो है वो बहुत ज़्यादा वो कर रही हैं और ये बहुत ज़्यादा मतलब डॉलर्स में जो है वो मिल रही हैं ये डॉल्स ना। The नाम क्या है? नहीं, मुझे इसका नाम नहीं याद। What is the name of this doll? Labubu. Labubu. And what show is this? Friends? No idea. I have no idea. I'm sorry. Stranger Things season 1. आई थिंक ये कोई कोरियन सीरीज लगी है, लेकिन मुझे इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है।